Hi, I'm Manoj Sinha. We were discussing bio for class 10th from NCRT book, chapter 6, life processes. We had discussed important points of life process, how many important life processes are there, how living beings are continued with life processes. We had discussed about metabolic processes, metabolism. We had discussed regarding energy requirement, how they require the energy, and then we were starting the second segment, nutrition. So, and that is what we were discussing, nutrition. So what are the important features we had discussed regarding questions for segment 1, and then we were discussing nutrition. And in nutrition, we were discussing how do living things get their food. So, up to this segment, I mean 6.1 was clear, and now we were discussing nutrition. We had in nutrition segment we had discussed about the modes of nutrition for living organisms. That is one we had talked about this autotrophic nutrition. This is what we had discussed, that plant prepare their foods with the help of chlorophyll, what is available with the plant, and in the presence of sunlight. We had that much we had discussed. How they prepare food, that absorption of light and energy by chlorophyll. There is stomata in leaves, when we were discussing about that leaf segment, and that leaf segment we had studied about stomata, where chloroplast is there in our previous video. In my previous video, this much we had discussed, that there is chloroplast in leaves. Inside chloroplast, this chlorophyll is available, and that chlorophyll convert light energy in chemical energy splitting by water molecules, and there is reduction of carbon dioxide to carbohydrate. We had a talk about reduction and oxidation. So this much up to this level we had discussed. We also discussed about the activity, how plotted leaves were there for croton, how they use starch, what is the activity we had to perform to figure out how chlorophyll is helpful. Up to this level we had discussed. Now we were discussing this also we had discussed, stomata, closed stomata, open stomata. So this level, up to this level we had discussed. Now we were discussing what is the important is heterotrophic nutrition, and basically heterotrophic nutrition we had to discuss. Basically heterotrophic nutrition is, that means normally in animal, because autotrophic nutrition is basically related with such living beings who can manufacture their food themselves. But heterotrophics are those nutrition or those living beings who are not, who cannot manufacture their food themselves, so they have to depend on others. And in this segment we will be studying specifically human beings. Heterotrophs are basically human beings. There are so many other animals also
So they are heterotrophs, nutrition, and in this book we will be it is very brief given. There are some types of heterotroph nutrition. One is saprophyte. You would have seen in this segment we will be studying that you would have seen some material you would have seen developing on some dead material or on some dead organism or some decaying organism. Mushroom you would have seen. These are saprophytes. They depend on decaying materials. Hmm? Now there is parasitic nutrition. You would have heard parasites. They are dependent on some other organisms. They cannot prepare their food themselves. They get inside in the body of some other different organisms. Sometimes parasites are endoparasites and ectoparasites. Endoparasites are who they live inside the body, and ectoparasites are those who are external, they live outside the body, but they take nutrition from the organism whom they are living. And we were in this segment we were discussing about cells and nucleus, how this paramecium or amoebas are there. They take unicellular organisms who take food like this. This is they have pseudopodia, false legs. Normally they use this pseudopodia for the purpose of movement, but sometimes when food comes in the contact, here it is briefly given. I am sure language is not a problem with anybody else. Anybody? So this is nucleus or of an amoeba, and this is food particle which is coming closer. The moment amoeba gets the senses of food particle near they start this structure and they start covering food in this pseudopodia like this, and then they take the food material inside their body, and after that, not naturally, if something we will be taking from outside our body, then some waste material will be there. Everything will not be of our use. It is very well written here. For example, amoeba takes food by using as what I was explaining. This is here. Amoeba takes in food using the food particle, forming a food vacuole. They create an open space inside the food vacuole. Complex substances are into broken down into simpler ones, and then which then diffuse into the cytoplasm. Cytoplasm is the cell liquid inside the cell. Protoplasm you would have heard in your early classes. 8, 9 you would have studied protoplasm. The liquid, this is a basic
liquid of life, it is said. The remaining undigested material is moved to the cell surface and then thrown it out. Excretion is moved. Same way, paramecium, which takes the unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken into a specific spot. Food is moved to this spot to the movement of cilia. This is cytopodia. Agree? Now we are studying nutrition in human being. In human being, it is a very complex body system. Human being, okay? So human being body is a very complex body system, and basic we will be studying nutrition in human beings. The alimentary canal, you would have heard and you would have seen the figure of digestive system. This is the figure of digestive system in human being. ठीक है? Human being हम प्रयास करता है, हम I am trying to explain you everything in my own language. If you will find any problem, then हम पहले प्रैक्टिकली इसको समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है? This is what? This is, first of all, you understand this. This is alimentary canal. It is written here. Human alimentary canal. It is a longest tube, and opening is from where we take food is called mouth. This is opening of alimentary canal. From we take food inside, that is called mouth. The buccal cavity. We have inside the buccal cavity there is a tongue, and on tongues there are so many glands that the moment we come in contact with food or we have the smell of food, जैसे ही हमें खाने की महक लगती है, हमारे जीभ में, मुंह के नीचे, जीभ के नीचे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, और वो ग्लैंड जो है तुरंत सेक्रेशन स्टार्ट करते हैं, और उस सेक्रेशन को हम क्या कहते हैं? सलाइवा. और जो ग्लैंड इसको रिलीज करता है उसको सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? सैलिवरी ग्लैंड. इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिसको लाइपेज बोलते हैं. ठीक है, इसमें पेप्सिन होता है. तो ये बक्कल कैविटी में जैसे ही फूड हम इंटर करते हैं, वो बक्कल कैविटी से ये सेक्रेशन स्टार्ट होने लगता है, और उसके बाद फूड जो है हम उसमें मैस्टिकेट करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, पीसते हैं. उसके लिए हमारे पास पूरा एक डेंटल सिस्टम होता है, टीथ होता है ना? यहां लिखते हैं. ठीक है, इसमें कई तरह के टीथ होते हैं बकल कैविटी में, जिसको थिकोडोंट, हेटरोडोंट कहते हैं. वो
मैस्टिकेट करते हैं, और टीथ जो होते हैं वो 32 इन नंबर्स होते हैं, जिनका काम है मैस्टिकेशन। ठीक है, और इसमें हमारा ये सलाइवा जो है हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ दांत कई तरह के होते हैं, जिसको एक को थिकोडोंट कहते हैं, उसको हेट्रोडोंट भी कहते हैं, एक तरह का होता है जिसको, ठीक है, और फिर एक को कहते हैं डिफायोडोंट। ठीक है, ये 3 तरह के दांत होते हैं। ये मैस्टिकेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम फूड को लेकर के दांत से पीसते काटते हैं। ठीक है, हर दांत का अलग अलग अपना काम होता है, और ठीक है, इसी में हम what we were talking about, this is food pipe। ये जो है फूड पाइप है, इसको एसोफेगस बोलते हैं। फूड पाइप को हम लोग फेरिंग्स भी बोलते हैं। और इसी के बगल में एक पैरेलल एक और पाइप होता है। ये पाइप जो यहां से यहां आप देख रहे हैं, ये पाइप इट इज डिवाइडेड इन टू। एक तो यहां स्टोमक में चला गया ये, ठीक है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं, और एक यहीं पे लंग्स है। ठीक है, उसमें उसको जो जाता है उसको लैरिंग्स बोलते हैं, जो सांस लेने का, उसको एयर पाइप बोलते हैं। ठीक है, ये फेरिंग्स से हम खाना जब मुंह में लेते हैं तो वहां लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज जो होता है वो फैट जो हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। और देखिए, इट इज रिटन हियर, सिंस लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, तो वहां पे वाटर सेक्रेशन होता है, उसी को सलाइवा बोलते हैं। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग, कॉल्ड सलाइवा secreted by salivary glands। Another aspect of food we canal is has to be broken into simpler molecules। This is done by the help of biological catalysts called enzymes। इसको एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज होता है वो, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है। ठीक है, और सलाइवा के साथ वो मूव जो है माउथ में व्हाइल च्यूइंग मस्कुलर टंग्स, इट इज नेसेसरी टू मूव फूड इनटू रेगुलेटेड, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जो फूड पाइप में फूड स्टोमक तक मूव करता है उसको क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, बीच में कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी। फूड इज मिक्स थ्रूली विथ सलाइवा, और उसको मैस्कुलर टंग उसमें हेल्प करता है, और उसके बाद वो वहां से एक प्रॉपर मूवमेंट के द्वारा रेगुलेटेड मैनर along with डाइजेस्टिव ट्यूब, इसी को डाइजेस्टिव ट्यूब बोलते हैं, ये जो है इट गोज टू rhythmically in order to push the foods
दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसी को मैंने कहा था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऑल अलोंग द गट, इस पाइप को, फूड पाइप को गट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नोट डाउन द नेम्स, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स आई एम यूजिंग। फ्रॉम माउथ फूड टेकन टू द स्टोमक, ये स्टोमक है, ये स्टोमक है। यहां से इस फूड पाइप के थ्रू, माउथ से ये फूड जो है वो स्टोमक में आता है, और स्टोमक में ये रिजर्वर के रूप में काम करता है। और स्टोमक में भी कुछ केमिकल जूस, डाइजेस्टिव जूस इसको बोलते हैं, इस स्टोमक में, इस स्टोमक में कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, जिसको हम कुछ कुछ नाम से पुकारते हैं। इसमें एक HCl होता है, यहीं पे पेराइटल सेल्स होते हैं इस स्टोमक के ऊपर में, यहां इसको पेराइटल सेल बोलते हैं, और वो पेराइटल सेल जो है H+ आयन लिबरेट करता है। ठीक है, और Cl वहीं स्टोमक में लिक्विड में अवेलेबल होता है। फूड जो हम लेते हैं उसको, वो एसिडिक मीडियम में, स्टोमक का मीडियम होता है एसिडिक, और उसमें ये HCl हेल्प करता है उस एसिडिक मीडियम को क्रिएट करने में। ठीक है, HCl क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस के साथ सेक्रीट होता है, और जो फूड उसमें जाता है उसको हम काइम बोलते हैं, उस फूड का नाम हम लोग काइम बोलते हैं। ठीक है, अब वो डाइजेस्टिव जूस वहां निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू। वहां गैस्ट्रिक ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि स्टोमक को गैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, इसलिए वो गैस्ट्रिक रीजन से उसमें पेप्सिन निकलता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? एक एंजाइम वहां निकलता है, एक HCl निकलता है जो एसिडिक मीडियम बनाता है, और दूसरा एक एंजाइम निकलता है उस एसिड HCl के एसिडिक मीडियम की वजह से, वो एंजाइम निकलता है, दैट इज कॉल्ड पेप्सिन। What other function do you think it serves in the acid? Mucus protects the inner lining of the stomach. वहां पे पूरे स्टोमक का जो इनर वॉल है उसमें एक म्यूकोजल लेयर होता है, वो पूरे स्टोमक को एसिड के बैड इफेक्ट से उसको बचाता है, और उसके बाद वहां से वो मीडियम एसिडिक हो जाता है। हम जब बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं तो वही एसिडिटी होने लगती है, और वही एसिडिटी हम नहीं कंट्रोल करते हैं तो फिर बाद में हमें अल्सर वगैरह हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सर कोई भी ऐसी वुंड को कहते हैं जो इनसाइड द बॉडी होता है, वुंड इनसाइड द बॉडी, उसको अल्सर बोलते हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर इसलिए बोलते हैं कि ये वुंड पेट में होता है, गैस्ट्रिक का मतलब स्टोमक में होता है, इसलिए इसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम खाना टाइम से नहीं खाते हैं तो हमें गैस्ट्रिक अल्सर होने का चांस होता है। ठीक है, अब फूड जो है वो वहां पे स्फिंक्टर लगा रहता है, यहां देखिए, यहां पे, और यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। ये जो है, ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है बिकॉज ये स्मॉलर साइज का नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी लार्जर इन साइज, बट उसका डायमीटर छोटा होता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लंबा होता है। एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय ए स्फिंक्टर मसल, वहां से एक स्फिंक्टर लगा रहता है जिससे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर नहीं आता है। उसी तरह से एक स्फिंक्टर लगा रहता है स्टोमक के एंट्री पर, उसको भी उस स्फिंक्टर को भी हम स्टोमक में
अंदर जा सकता है फूड, स्टोमक से बाहर आना फिर रिगर्जिटेशन, वही एसिडिक होता है तो रिगर्जिटेशन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन enters food, now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal, as what I was telling you कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम है, बट इट इज नॉट स्मॉलर इन साइज, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द, एंड लेंथ ऑफ इज डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, जैसे लायन वगैरह का जो होता है वो थोड़ा कम होता है, गोट वगैरह जो होता है क्योंकि वो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास, तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो थोड़ा, क्योंकि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है इसलिए थोड़ा बड़ा होता है। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, सो जो टाइगर वगैरह होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब चला जाता है फूड तो वहां पे लीवर एक्टिव हो जाता है और वहां डाइजेशन होता है फूड का, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। बेसिकली हम यही तीन चीज खाते हैं, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं तो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट लाइपेज के द्वारा, प्रोटीन पेप्सिन के द्वारा, एंड फैट जो होता है वो फैटी एसिड के द्वारा डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट होने के बाद फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक, और वहां अल्कलाइन मीडियम पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है, पैनक्रियाज से निकलता है जो फूड के मीडियम को चेंज करता है, और वो फूड वहां से पैनक्रियाटिक एंजाइम के एक्शन की वजह से अल्कलाइन मीडियम में चला जाता है। फूड जो होता है वो अल्कलाइन हो जाता है और वो ड्यू टू पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है। इन एडिशन ऑफ एक्टिंग ऑन फैट्स, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम, फैट तभी डाइजेस्ट होगा जब ये फूड का इन्वायरमेंट मीडियम जो है वो चेंज होगा। एसिडिक मीडियम में वो फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अल्कलाइन मीडियम में ही होता है। पैनक्रियाज के बाद बाइल जूस निकलता है लीवर से, और वो बाइल जूस, बाइल सॉल्ट जो है वो ब्रेक्स डाउन किसको, ग्लोबुल्स, स्मॉल ग्लोबुल्स, increase the efficiency of enzymatic action. This is simpler emulsification। जैसे बाइल जूस जो निकलता है वो बड़े बड़े जो फैट के ग्लोबुल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है और तब उनको डाइजेस्ट करवाना। बाइल जूस ब्रेक्स बिगर fat molecules into smaller size, और तब उनको पचाना आसान हो जाता है। पैनक्रियाज secretes pancreatic enzymes which contains like trypsin जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज उसको ब्रेक डाउन करता है फैट को। देखिए, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, लाइपेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फैट, एंड वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स जिसमें सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, और फाइनली प्रोटीन को एमाइनो एसिड में, पेप्सिन जो होता है उसको एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। complex carbohydrate into glucose and fats into fatty acids and glycerols। फैटी एसिड के रूप में ही हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता, ये ऑब्जर्व हो जाता है। और डाइजेस्टेड फूड जो होता है नाउ टेकन इनटू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का, और मिनरल्स के बाद फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको विलाई बोलते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका फिगर नहीं दिया हुआ है। जब when you will be studying a cross section of small intestine, मैं बताता हूँ, ट्राई करता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, don't laugh because my figure is very bad।
और जब हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो यू विल फाइंड ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड विलाई एंड ये एब्जॉर्प्शन करते हैं जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होता है उनसे सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड विलाई। Numerous finger-like projection called villi, which increases the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels. वहीं absorb होता है food और food के बाद वो every cell of the body जितना जहां भी repair होता है tissue का building होता है absorbing energy, so undigested food then goes to large intestine। और यहाँ वाटर जो एक्सेस वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वो लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद वहां से स्फिंक्टर के ओपनिंग से बाहर एनल पोर पे निकल जाता है और वही फूड बाहर चला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी ये बातें सारी। Next class में we will be taking up the question answer of this segment and we will try to give you a guideline or a borderline boundary line for respiration also। मेरे ख्याल से आप इतना तक समझ गए होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है। What are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? Autotrophic nutrition और heterotrophic nutrition में बेसिक डिफरेंस यही है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है इनसाइड द बॉडी खुद से बनाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जो हम दूसरे पर डिपेंड करते हैं। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड वो सराउंडिंग से लेते हैं, वाटर उनके रूट्स नीचे जमीन से खींच लेते हैं, रॉ मटेरियल तीसरा क्लोरोफिल है जो क्लोरोप्लास्ट में लीव्स के अंदर होता है, और सनलाइट एनवायरमेंट में मौजूद है। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक? एसिड हमारे स्टोमक का पेप्सिन, पहले तो उसका रोल है कि जो हम खाना खाते हैं उससे बैक्टीरिया किल करता है, और बैक्टीरिया किल करने के बाद उस एसिड के साथ पेप्सिन जो है उसमें लाइसिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक नहीं कर सकता है, थोड़ा सा वहां पे ब्रेक हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो एक्सेस फैट वगैरह हम ले लेते हैं वो वहां ब्रेक हो जाता है लाइसिन की वजह से। और ये तभी हो सकता है जब स्टोमक में एसिडिक मीडियम हो, इसलिए स्टोमक का एसिडिक मीडियम बनाने का वो काम करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन मैं आपको लिखवा दूंगा। इसमें डाइजेशन को एंजाइम का काम होता है, एंजाइम कैटलिस्ट का काम करते हैं और एंजाइम डाइजेशन को फास्ट करते हैं। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? विलाई स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है और वहां एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। तो मेरे ख्याल से आई एम वेरी मच श्योर, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी और आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपके पास कोई फीडबैक होगा इसके दौरान, कोई क्वेश्चन होगा आपका इससे रिलेटेड, feel free to ask me, no problem is there, I am here any time to help you। Once again I am giving you my WhatsApp number 7004916664। give me your feedback, subscribe this channel, and if you find it suitable for you, useful for you, ask your friend to subscribe the channel and take the benefits of these classes। Thank you very much to be with me।